بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه والذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم زدنی علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ وہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں اسلام جیسی دولت ملی۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ذاریات کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور بخاری کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی پڑھا گیا ہے۔ اسی آیت اور حدیث کے حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، بلکہ اگر دنیا کی نعمتوں کو انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا، اور اس بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود ہی کر دیا ہے۔ سورہ ابراہیم اور سورہ نحل کے اندر وہ آیت کریمہ موجود ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم سب کے سب اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ غرض کی کائنات کے اندر اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے ہیں، ہم ہی اس سے مستفید ہوتے ہیں، ہم ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کائنات کے اندر یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوئی ہوائیں، یہ گردش کرتے سورج چاند ستارے، زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کے پیداوار، بلکہ زمین پر پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، قیمتی معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، لیکن انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، فرائض سے لے کر نوافل تک کا اہتمام کریں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رحم الراحمین کی رحمت دیکھیے کہ اس کے باوجود اپنے بندوں کی عبادتوں کی کتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ عبادتوں پر مزید نعمتیں، رحمتیں، بخششوں کی بوچھار کرتا رہتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس مختصر سے وقت میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، حج تک ادا کرتے ہیں، تو آخر اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ ہمیں اس کا کچھ اجر و ثواب بدلہ ملتا ہے؟ عبادت سے کچھ فائدہ ہے یا نہیں؟ عبادات کے تعلق سے جب آپ غور کریں گے تو بہت ساری فوائد ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، ہمارے خطائیں معاف اللہ کر دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، صغائر کے ہم مرتکب ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم عبادتیں کرتے ہیں، عبادتوں میں خاص طور سے اہم عبادت جب نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، تم دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، رات کی ساعتوں میں بھی کرو۔ فائدہ کیا ملے گا؟ 5 وقت کی نمازیں جب پڑھو گے، تہجد پڑھو گے، قیام اللیل کا اہتمام کرو گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ خود ہی فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر بھی واضح طور پر مسلم شریف کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، جب آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے،
تو ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ایک شرط رکھتے ہیں، جب تک بندہ کبائر کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے دور رکھتے ہوئے جب عبادت کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ متفق علیہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور اگر اس میں کوئی دن میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو حل یبقى من درنہ شیء، بتاؤ کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، توبہ و استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کی رحمت دیکھیے اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہماری گناہوں کو غلطیوں کو معاف صرف نہیں کرتا بلکہ ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو اجر و ثواب کی حیثیت دے دیتا ہے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، صحیح معنوں میں مومن ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں مومن ہو جاتا ہے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، جن کی غلطیوں کو ہم اجر و ثواب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا 2 معنی بیان کیا ہے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے بدلنے کا کہ اللہ رب العالمین اس کی حالت تبدیل کر دیتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا، اب نیکیاں کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ شرک کرتا تھا، اب صرف الہ واحد کی عبادت کرتا ہے۔ پہلے وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہے۔ اللہ اس کے حالت کو تبدیل کر دیتا ہے اور یہ چیزیں اس کے لیے باعث اجر بن جاتی ہیں۔ اور مفسرین نے دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، مسلم شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ کو پیش کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کو ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا۔ وہ اس بات میں جواب دے گا، اعتراف کرے گا، انکار کی اسے طاقت و جرات نہیں ہوگی، اور وہ سوچ بھی رہا ہوگا کہ ابھی ہمارے تو بڑی بڑی غلطیاں، بڑے بڑے گناہ، بہت سارے اعمال ابھی تو ہمارے سامنے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اتنے میں اللہ حکم دے گا کہ جا، تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی، تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ اے اللہ، میرے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے ہنس پڑتے ہیں، آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا صلہ یہ اور بدلہ یہ ملتا ہے کہ اس کی غلطیوں کو اللہ
अजर सवाब में तब्दील कर देता है। यही नहीं बल्कि आइए फ़वाइद में से एक फ़ायदा बताऊं कि जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए बैठे रहते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। हमारे और आपके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं, फ़रिश्ते दुआ करते हैं। कुरान के अंदर लंबी आयत मौजूद है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया है, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबू सबीलक वक़ीहिम अज़ाबल जहीम रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये लंबी आयत है जो सूरह मोमिन की है। इस आयत के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हमारे और आपके लिए दो अजीम खुशखबरियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ने इस आयत में दो खुशखबरी हम और आपके लिए रखी है। एक खुशखबरी तो ये है कि गायबाना तौर पर फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, जिसकी फजीलत हदीस के अंदर मौजूद है। खुतबे मसनूना में मैंने वो बुखारी की हदीस पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फी मुसल्ला अल्लज़ी सल्ला फीहि मा लम युहदिस तक़ूल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा रहमहू। कि जब आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़कर अपनी जगह बैठा रहता है, तौबा व इस्तिग़फ़ार में लगा रहता है, ज़िक्र व अज़कार करता रहता है, जब तक वो अपनी जगह तब्दील नहीं करता, और एक कौल के मुताबिक जब तक वो मस्जिद से बाहर नहीं जाता, इबादत की जगह पे वो बैठा हुआ तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, तो फरिश्ते क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा रहमहू। ऐ अल्लाह इस बंदे को तू माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह तू इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ये फरिश्ते दुआ करते हैं उन नमाजियों के लिए जो नमाज पढ़कर अपनी जगह पर बैठकर या मस्जिद में बैठकर ज़िक्र व अज़कार में लगे रहते हैं। यही नहीं बल्कि एक दूसरा माना जो ये बयान किया गया है कि मालम युहदिस फी, जब तक कि उसका वज़ू नहीं टूटता, बावज़ू होकर ज़िक्र व अज़कार करता है, या वज़ू बाकी रहता है जब तक वो अपने भाई की बुराई नहीं करता है, गीबत और चुगलखोरी नहीं करता है, अपनी ज़ात से उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, तब तक ये फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और दूसरा फ़ायदा या दूसरी खुशखबरी जो इस आयत के अंदर मौजूद है वो ये है कि अहले ईमान के ख़ानदान जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आज चाहते हो कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के साथ घर में रहते हैं, आपकी बीवी आपके साथ होती है, आपका बेटा आपके साथ होता है, आपकी बेटी आपके साथ होती है, अगर ये चाहते हो कि जन्नत में भी एक साथ रहने का मौका मिले तो आपको मिल सकता है, लेकिन शर्त है कि जब अमल सालेह करने वाले हों, जब नेकियां करने वाले हों, जब नमाज की पाबंदी करने वाले हों, जब रोज़े रखने वाले हों, जब सदका तो खैरात देने वाले हों। इसलिए कि आयत के अंदर मौजूद है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबाअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मोमिन हैं, जो ईमान वाले हैं, और इनकी पैरवी जब इनकी औलाद ईमान के साथ करती है तो अल्लाह फरमाता है कि हम उनको उनके साथ मिला देंगे, उनकी औलाद को उनके साथ कर देंगे। यहाँ एक इश्काल पैदा हो सकता है, नेकियों में तफावत हो सकता है। बाप की नेकियां बेटे से ज़्यादा हो सकती हैं, बेटे की नेकियां बाप से ज़्यादा हो सकती हैं, शौहर की नेकियां बीवी से ज़्यादा या बीवी की नेकियां शौहर से ज़्यादा हो सकती हैं। फिर जन्नत में मकाम एक यकसा कैसे मिलेगा। अल्लाह ताला ने कहा वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, कि हम उनके अमलों में कुछ कमी नहीं करेंगे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में उनको इस तरह से यकसा मर्तबा दे देगा कि अदना को भी उठाकर आला के बराबर कर देगा।
ये नहीं कि आला मकाम में कमी करके अदना मकाम पर लाकर सबको बराबर कर दे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से उसकी अमलों की कमियों को खुद पूरा कर देगा और उसको अदना से उठाकर आला मकाम अता कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके साथ जन्नत में रहे तो फिर आपको अमल सालेह करना पड़ेगा, आपको नेकियां करनी पड़ेंगी। यही नहीं, आइए मैं इशारा करूं कि आदमी जब फ़राइज़ का एहतमाम करता है, नवाफिल का भी एहतमाम करता है, फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ता है, पहले और बाद की सुन्नतों का एहतमाम करता है, जुमा की नमाज के लिए आता है, जुमा के बाद सुन्नतें पढ़कर ही जाता है, रात के वक्त लंबी रातें अल्लाह ने मौसम दे रखा है, नींद भी पूरी हो जाती है। अगर आप इबादत करना चाहें तो आपके लिए वक्त भी मैसर है, मौजूद है। अगर नवाफिल का आदमी एहतमाम करता है, जब इबादत करता है तो उसको अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, अल्लाह का वो तकर्रुब बंदा हो जाता है, अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा हो जाता है, उसे अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। हदीस के अंदर मौजूद है, बुखारी की रिवायत है, इब्न बुखारी की रिवायत है, बयान करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, जो बयान करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है, मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूँ और मेरा बंदा फ़राइज़ के ज़रिए मेरा तक़र्रुब हासिल करता रहता है। और इसी तरह नवाफिल के ज़रिए भी जब तक़र्रुब हासिल करता रहता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। अल्लाह कहता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़ैदा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताअदनी लऊइदन्नहु। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं उससे मोहब्बत कर लेता हूँ तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, यानी उसके तमाम आज़ा को अपनी इताअत में लगा लेता हूँ। हाथ इस्तेमाल करता उन्हीं कामों पर जो बाइसे अज्र होता है, चलकर उन्हीं कामों के लिए जाता है जिस पर उसे अजर सवाब मिलता है, देखता अपनी आंखों से उन्हीं चीज़ों को है जो बाइसे अज्र हुआ करती हैं, कान से वही बातें सुनता है जो बाइसे अज्र होते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह यही नहीं बल्कि यहाँ तक कहता है कि ये जब बंदा फ़राइज़ का एहतमाम करता है, नवाफिल का एहतमाम करता है, इबादात का एहतमाम करता है, तो अगर मुझसे कुछ सवाल करता है, उसे तंदुरुस्ती की ज़रूरत है, उसे माल की ज़रूरत है, उसे इज्जत की ज़रूरत है, उसे ओहदे मनसब की ज़रूरत है, उसे समाज में लोगों में महबूब होना है, तो अल्लाह कहता मैं सब कुछ दे देता हूँ। वो इंसालनी लऊतियन्नहु, ताकीद दर ताकीद का सेगा मौजूद है, अहले इल्म तशरीफ रखते हैं। अल्लाह फरमाता है वो इंसालनी लऊतियन्नहु, जब वो मुझसे सवाल करता है, मांगता है, तो मैं उसे अता करता हूँ, और अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसे पनाह भी देता हूँ। तो ये इबादत का फ़ायदा है कि इबादत से अल्लाह की मोहब्बत और उसका कुर्ब हासिल होता है। इसलिए हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम और आप इबादत के लिए वक्त निकालें। हम सोचते हैं अगर कारोबारी आदमी हैं, बयो शरा में लगे हुए हैं, दुकानदार हैं, तो सोचते ये हैं कि अभी खुतबा आधा घंटा होगा, उसके बाद चले जाएंगे, हो सकता है कोई कस्टमर आ जाए। दुकान बंद नहीं करना चाहते हैं। मजदूर आपके यहाँ मजदूरी करता है, ये मजदूर को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, मेरे काम में कमी आ जाएगी। आदमी अपना निजी काम करता है, काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, सोचता है हमारा खसारा और नुकसान हो जाएगा। लेकिन इबादत के लिए जब वक्त निकालोगे तो फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह कहता है तुम्हारे फ़क्र व फाका को मैं दूर कर दूंगा। जिसके लिए तुम मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, मुहताजी ख़त्म हो जाए, गरीबी मुफलिसी तुमसे दूर हो जाए, अल्लाह कहता है कि मैं वो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। इब्न माजा के अंदर हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है या इब्न आदम तफर्रग ले इबादती, ऐ इब्न आदम तुम इबादत के लिए फरागत इख्तियार करो, वक्त निकाल लिया करो।
अजान हो रही है, मस्जिद की तरफ चले आओ, दुकान बंद कर दो, मजदूरी तर्क कर दो, मजदूर को छुट्टी दे दो, क्या करो, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो। अल्लाह फरमाता है अगर ऐसा करोगे, अगर तुम वक्त निकालोगे तो हम लो सदर का गिना व असुद्द फ़क्र का, मैं तुम्हारे दिल को गिना से भर दूंगा, मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा, मैं तुम्हें बेनियाज कर दूंगा और तुम्हारे फ़क्र फाका को भी ख़त्म कर दूंगा। इन लम तफ़अलू, लेकिन ये भी सुन लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मला तो यद का शुगला वलम अशुद्द फ़क्र का, मैं तुम्हारे मशागिल को और बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारी मसरूफियात को और ज़्यादा कर दूंगा। तुम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहोगे, पसीने में तर रहोगे, लेकिन वलम अशुद्द फ़क्र का, तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पूरा नहीं होने दूंगा, मेहनत के बावजूद तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो हम और आप जो सोचते हैं कि नमाज के लिए, जुमा के लिए, दिगर इबादतों के लिए अगर हम वक्त निकालेंगे तो हमारा खसारा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम नुकसान, मुफलिस और गरीब कल्लाश हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि अगर तुम मेरे लिए वक्त निकालोगे, अगर मेरे लिए वक्त निकालोगे तो मैं तुम्हारी मुहताजी को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी कर दूंगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप इबादतों से अपने आप को दो चार रखें, इसलिए कि जब हम इबादत करेंगे तो इबादत का ये सिला और बदला मिलेगा। आज रात लंबी हो रही है, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो इबादत के मामले में औरतों से पीछे रहते हैं, औरतों से पीछे रहते हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इबादत के मामले में मर्दों से पीछे रहते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द और औरत के लिए रहमत की दुआ की है, जो रात को उठे, जो मर्द रात को उठे, क़यामुल लैल का एहतमाम करे, अपनी बीवी को भी जगाए, और अगर उसकी बीवी इनकार करे पानी से छींटे मार कर उसको बेदार करे और क़यामुल लैल में लगा दे, तो इस पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मर्द के लिए रहमत की दुआ करते हैं। यही नहीं बल्कि वो औरत जो मर्द से पहले उठ जाती है, इबादत में क़यामुल लैल में वो का एहतमाम करती है, वो अपने शौहर को भी जगाती है। शौहर अगर उठना नहीं चाहता है, सुस्ती और काहली से काम लेता है, वो औरत अगर अपने शौहर के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर अगर उसको बेदार कर लेती है, वो भी क़यामुल लैल में मसरूफ़ हो जाता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नबी उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। हदीस के अंदर मौजूद है, रहमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल फसल्ला व क़ज़ा इमरातुहु फसल्लत फ़इन अबत नज़हा फ़ी वजहि आलमा, कि आदमी, उस आदमी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह तू रहम फरमा कि जो रात को क़यामुल लैल करता है, रात के लिए उठता है, क़यामुल लैल का एहतमाम करता है, और क्या करता है, व क़ज़ा इमरातुहु, अपनी बीवी को भी जगाता है, और वो बीवी फ़इन अबत, अगर इनकार करती है, उठना नहीं चाहती है, तो नज़हा फ़ी वजहि आलमा, उसके चेहरे पे वो पानी के छींटे मारता है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमल्लाहु इमरातन कामत मिनल लैल फसल्लत, अल्लाह उस औरत पर रहम फरमाए जो रात को उठती है, क़यामुल लैल का एहतमाम करती है, वह अयक़ज़त ज़ौजहा फसल्ला, और अपनी शौहर को भी जगाकर जब उसे क़यामुल लैल में लगा देती है। या अगर फ़इन अबा, अगर वो इनकार करता है, अगर वो सुस्ती और काहली का मुज़ाहरा करता है, तो नज़हत फ़ी वजहि अलमा, तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। इस हदीस के अंदर एक मसला शुर्राहीन हदीस ने ये लिखा है कि इबादत ये में बरतरी और फजीलत ये मर्दों के लिए सिर्फ ख़ास नहीं है, औरत आगे जा सकती है, मर्द पीछे हो सकता है। और ये मसला यहाँ ये भी बताया गया है कि औरत से पहले शौहर को उठने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि रात को जब शौहर नहीं उठेगा तो औरत नहीं उठेगी। इस हदीस में पहले मर्द का जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया है कि सबसे पहले तुम्हें चारपाई छोड़नी है, बिस्तर से तुम्हें उठना है, तब औरत उठेगी। इसलिए कि
अगर तुम सुस्ती और काहली करोगे तो आपकी बीवी सुस्ती काहली में मुब्तला होगी, आपकी औलाद काहली में मुब्तला होगी। इसीलिए सबसे पहले कहा गया है कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ, जहन्नम में ना जाने वाले आमाल से पहले अपने को दूर रखो, उसके बाद अपनी औलाद को तंबीह और तरबियत देने की बात कही गई है। मसला ये है कि सबसे पहले जब हम नमाज का एहतमाम करेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, हम सदका तो खैरात करेंगे, हम नेकियों में पेश रहेंगे, तो हमारी औलाद भी हमारे नक्शे कदम पर चलेगी, हमारी बीवी उसी रास्ते पर चलेगी, हमारी औलाद उसी रास्ते पर चलेगी, हमारा बेटा और बेटी उसी रास्ते पर चलेगी। इसलिए हम और आप ये कोशिश करें कि अल्लाह की इबादत में एक दूसरे से निकल जाने की कोशिश करें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह कितना रहीम है, अगर कुछ भी ना दे तो हमारा मकसद तख्लीक यही है, पैदा ही किया है कि तुम नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी इन इबादतों की कदर करता है, उस पर अजर सवाब देता है। लेकिन यही एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़वाइद इशारा किए गए हैं कि जब आप इबादत करेंगे तो अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, आपके गुनाह माफ़ होंगे, लेकिन शर्त है कब? जब आपकी इबादत, जब आपकी नमाज किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, किताब व सुन्नत के मुताबिक हो। इसलिए कि आमाल सालिहा के कबूलियत के लिए एक शर्त, सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपका अमल, आपकी नमाज किताब व सुन्नत के मुताबिक हो। नहीं तो कितने लोग ऐसे होंगे, कितने बदनसीब ऐसे होंगे कि आमिलतुन नासिबा, कुरान की आयत बता रही है, आमिलतुन नासिबा, वो काम पर काम करते जाएंगे, इबादत पर इबादत करते जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, वो भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। क्यों? ये नमाज पढ़ने के बाद जहन्नम में जा रहे हैं, क्यों सदका तो खैरात देने के बाद जहन्नम में जा रहे हैं, हज करने के बाद क्यों उनको जहन्नम में डाला जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इबादत को इबादत के तौर पर अदा नहीं किया, किताब व सुन्नत के मुताबिक उन्होंने इस अमल को अदा नहीं किया, इस वजह से उनको जहन्नम में जाना पड़ रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सबक पढ़ाया है, बाद में मश्क दिया है, बाद में तमरीन दिया है। कहा है नमाज के ताल्लुक से हम और आप सुनते हैं कि बहुत अजीम इबादत है, और यकीनन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं कह दिया जाओ नमाज पढ़ लो, कहा सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। पता ये चला कि नमाज वो नमाज कबूल होगी जो सुन्नत के मुताबिक होगी। हम और आप सुनते हैं कि आदमी हज कर लेता है तो गुनाहों से ऐसे पाक व साफ हो जाता है जैसे अभी उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो, लेकिन शर्त है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खुजू अन्नी मनासिककुम, हज का फार्म भर दिए हो, जाहिल हो, शरई उलूम के ताल्लुक से तुम नावाकफियत रखते हो, मसले मसाइल का इल्म नहीं है, अहले इल्म से पूछ लो वहाँ जाके हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से अरकान अदा करने पड़ेंगे, कब करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। खुजू वन्नी मनासिकुकुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो। पता ये चला कि अगर आपने हज किया है लेकिन उस पर किताब व सुन्नत की मोहर नहीं लगी हुई है तो दुनिया में लेबल आपके नाम के साथ ज़रूर रहेगा हाजी का, लेकिन आखिरत में आपका अंजाम हाजियों के साथ नहीं होगा। तो हम और आप ये कोशिश करें कि इबादत की जहाँ कोशिश हो वहीं ये भी ख्याल रहे कि हमारी इबादत किताब व सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को सारी इबादतें किताब व सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे। ऐ बारे इलाहा हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को तो दूर फरमा। ऐ बारे इलाहा हमें जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उन्हें शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा। ऐ बारे इलाहा जब तक हमें दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम पर बाकी रख, और जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.